The format of this session will be as follows. We will start with Jerry, and then Parvati, and then Swananji, and they will be reading a selection of their poetry for about 15 minutes each. And then there'll be a very short Q&A session with our audience. Hi. Just because, literary festivals should not be ek satra hua to wo baat hi khatm hua and we don't talk about it anymore. Instead of reading my poems, I'm going to read you poems in translation. This book of poems, The Ant Who Swallowed the Sun, iski shuruaat ek gym mein hua. Okay? Gym mein kaisa? Now, in gyms, they generally play jing-jang music in order to make you walk faster or exercise more. Aisa kuch unke man mein hai. But that day, the music system was not working. And next to me on the next treadmill was a great singer called Neela Bhagwat. And Neela Bhagwat एक socialist singer है. तो वो उसको मृदंगम की ज़रूरत नहीं है. And so I turned to her and said, there is no music, Neela ji, aap kyun nahi gaati? So she started singing. And she sang a poem called Mungi Udali Akashi. Tine Gilile Suryanshi. Now this means an ant flew into the sky and she swallowed the sun. And I begin to think now, because in our tradition of singing, a line keeps coming back. People sing the line, then फिर से दोहराते हैं, and each time an image can come into your head. Each time you can think of another thing. तो मूंगी उड़ाली आकाशी, तीने गिलिले सूर्यांशी. What can it possibly mean? An ant flew into the sky, she swallowed the sun. ये क्या हो रहा है? And I began to imagine, शायद मुक्ताबाई जो ये गा रही है, who has written these lines, शायद एक छोटी बच्ची है, and she is kneeling on the ground, and she picks up a little ant, and then she closes one eye, and she covers the sun with it. Mungi udali akashi, tine gilile suryanshi. She swallowed the sun. Or could it be this is how God feels? When God appears to you in your life, you melt down. It is as if you have swallowed the sun. And so I began to translate this book. And here is a poem. And now what we are going to do is we are all going to visit Marathi together. Okay, we will visit Marathi together. You will recite with me. I will say a line. Don't worry if you don't know it or you know it. Just say it. Sukhache shevti, dukha ale bheti. Chal Ranchi! सुक्काचे शेवटी दुःख आले बेठी. लवली भेटल्यासाठी तेही नुरे. सुख ते कवना, दुःख ते कवना. दोही अध्यान करी पारे. मुक्ताई म्हणे चांग्याचेई. स्वयंभू चेलावटेश्वरी. Give yourself a round of applause. Marathi. Yes. Well done, Ranchi. And this is the translation. First came joy, and on the morrow, hard on her heels, a visit from sorrow. Just as we settled down to grieving, sorrow announced that she was leaving. Joy and sorrow, what's the difference? Both are sisters, born of ignorance. Muktai tells Sangya, self-born the soul, standing like a banyan, aloof and whole. A round of applause for Muktabai. From the 13th century to you. And now another poem from another poet, Tukaram. Quickly, and then I think my time is over. This is Tukaram, and this is what I was trying to say, and Tukaram said it so long ago.
so long ago. आम्हा घरी धन शब्दांची रत्ने. आम्हा घरी, come on, आम्हा घरी शब्दांचे रत्ने. And what is he saying? Shabd, these in our house, in the house of humanity. The word is wealth. Shabdanchi ratne. The words are jewels. The words are money. Shabd, language. This is our wealth. This is our money. Shabdanche ratne. Amha ghari dhan shabdanchi ratne. Come on, you can do better. Amha ghari dhan shabdanchi ratne. Words are wealth. Words are tools. Words, life of our life. Words, the wealth we offer the world. Tuka says, the word is God. The word be praised. Thank you all very much. आप सभी को जोहार. Johar. आप सभी को जोहार. Yes. पहली कविता का शीर्षक है रोपा के बाद. हम रोपा रोपते हैं, उसके बाद उत्सव मनाते हैं. आओ संगी, धान के बढ़ने तक हम नाच लेते हैं. रोपा का काम पूरा हो गया है. पहाड़ से नदियाँ खेत उतरेंगी, वे फसलों को सींचेंगी. इसलिए आओ नदियों में नृत्य का रस घोलते हैं. कार्तिक महीने तक धरती पर घूम घूम कर नाचें. आओ संगी, हम थोड़ा नाच लेते हैं, ताकि हमारे चूल्हों पर धान के सींचने से पहले धरती अपने गर्भ में फसलों को खूब अच्छे से पका ले. अगली कविता का शीर्षक है बांडा जेठ की बारिश. आषाढ़ के महीने से पहले बांडा जेठ आता है, जिसमें बारिश की शुरुआत होती है. बांडा जेठ की बारिश शुरू हो चुकी थी. पहाड़ के पेट से नदियों का जन्म हो रहा था. नदियों ने मछलियों को जन्म दिया. उन मछलियों के पेट में अभी अंडे थे. जैसे धरती के पेट में जंगल अभी खिल ही रहे थे. वे नन्हे शिशु के समान थे. इसलिए उनके बढ़ने तक गांव के लोगों का जंगल जाना वर्जित था. अगली कविता है मघा. मघा यानी जटंगी के फूल. छोटे पीले फूल होते हैं जो छोटा नागपुर के डांड़ खेत में खिलते हैं. देखो सहिया, डांड़ का मघा फूल कितना सुंदर दिख रहा है. सूर्य उसकी खूबसूरती निहारने आया है, इसलिए इतना इठला रही है. संगी के आने की खुशी में मघा लहरा रही है. देखो जरा, मघा का रंग गाढ़ा सूरजी पीला, दोनों एक मेघ हुए कैसे जगमगाते खिल रहे. सूर्य आसमान में मघा फूल की तरह दिख रहा और मघा फूल धरती में सूर्य की तरह दिख रहा. अंतिम कविता है ये. सबने उनके लिए जगह बनाई. शहर के हिस्से से दूर एक गांव जो पहाड़ के हिस्से में आता था,
वहाँ एक प्रेमी जोड़े को एकांत में छोड़कर मौन चला गया दूर। तब चारों तरफ देखकर उसने कहा अपनी संगी से, प्रिय, गीत गाते हुए मुझे रीझने दो, मेरे इतने करीब मत आओ, पीछे की भीत और तुम्हारा मांदर मेरी रीझ की जगह पर आ जा रहा। उस वक्त प्रेमिका के विनीत निवेदन पर धरती हल्की नर्म हो गई। सबने उनके लिए जगह बनाई। उस वक्त उनके प्रेमालाप से घर की भीत भी हल्की खिसक गई। शुक्रिया। और पढ़ दीजिए एक दो और सुन लेते, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं हेलो चेक कितनी सुंदर कविताएं सुनी, और मैं थैंक यू सो मच। और जेरी की तरह मैं अब अपनी कविता नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि कविता अब हम पढ़ ही रहे, और मेरे हाथ में एक दूसरा पोएट है जो बहुत बड़े पोएट रहे हैं, उर्दू के इब्ने इंशा नाम है जिनका। तो मैं उनकी एक दो नज़में सुनाता हूँ आपको, क्योंकि फिर मेरे गाने तो आप सुनने ही वाले, तो वो तो होके ही रहेगा। और हम कवियों को लगता है कि हम लोग चांद के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा लिखते हैं, चांद के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। तो जैसे गुलजार साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो चांद को बहुत अलग अलग तरह से हमेशा देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इब्ने इंशा से ज़्यादा अच्छी तरह किसी ने चांद को देखा है। तो मैं एक उनकी नज़्म है चांद की, वो सुनाता हूँ। वही काफ़ी लंबी है, शायद 15 मिनट तो उसी में हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो एक और उनकी नज़्म है, वो सुनाऊंगा, बच्चा। मैं भी खड़े होकर सुनाता हूँ। शाम समय एक ऊंची सीढ़ियों वाले घर के आंगन में चांद को उतरे देखा हमने। चांद भी कैसा, पूरा चांद। इंशा जी, इन चाहने वाली देखने वाली आंखों ने मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों कैसा कैसा देखा चांद। हर एक चांद की अपनी धज थी, हर एक चांद का अपना रूप, लेकिन ऐसा रोशन रोशन हंसता बातें करता चांद। दर्द की टीस तो उठती थी, पर इतनी भी भरपूर कभी आज से पहले कब उतरा था दिल में इतना गहरा चांद। हमने तो किस्मत के दर से जब पाए अंधियारे पाए, हमने तो किस्मत के दर से जब पाए अंधियारे पाए, ये भी चांद का सपना होगा, कैसा चांद, कहां का चांद। इंशा जी दुनिया वालों में बेसाथी बेदोस्त रहे, इंशा जी दुनिया वालों में बेसाथी बेदोस्त रहे, जैसे तारों के झुरमुट में तन्हा चांद, अकेला चांद। इनका दामन इस दौलत से खाली का खाली ही रहा, इनका दामन इस दौलत से खाली का खाली ही रहा, वरना थे दुनिया में कितने चांदी चांद और सोना चांद। जग के चारों कोट में घूमा सैलानी हैरान हुआ, सैलानी मतलब ट्रैवलर। जग के चारों कोट में घूमा सैलानी हैरान हुआ, इस बस्ती के इस कूचे के इस आंगन में ऐसा चांद। आंखों में भी चितवन में भी चांद ही चांद झलकते हैं, आंखों में भी चितवन में भी चांद ही चांद झलकते हैं, चांद ही टीका चांद ही झूमर, चेहरा चांद और माथा चांद। एक ये चांद नगर का बासी जिससे दूर रहा संजोग, वरना इस दुनिया में सबने चाहा चांद और पाया चांद। देखिए एक चांद को लेके कितनी तरह से बातें कर रहे हैं इंशा जी। अंबर ने धरती पर फेंकी नूर की छींट उदास उदास, आज की शब तो अंधी शब थी, आज किधर से उतरा निकला चांद। इंशा जी ये और नगर है, इस बस्ती की रीत यही, सबकी अपनी अपनी आंखें, सबका अपना अपना चांद। अपने सीने के मतला पर जो चमका वो चांद हुआ। मतलब अपना सीने का मतलब आसमान। तो अपने ऊपर जो चमका वो चांद हुआ, अपने सीने के मतला पर जो चमका वो चांद हुआ, जिसने मन के अंधियारे में आन किया उजियारा चांद।
अपने सीने के मतला पर जो चमका वो चांद हुआ, जिसने मन के अंधियारे में आन किया उजियारा चांद। चंचल मुस्काती मुस्काती गोरी का मुखड़ा महताब, महताब मतलब भी चांद ही होता है। चंचल मुस्काती मुस्काती गोरी का मुखड़ा महताब, पतझड़ के पेड़ों में अटका पीला सा एक पत्ता चांद। दुख का दरिया सुख का सागर इसके दम पे देख लिए, हमको अपने साथ ही लेकर डूबा चांद और उभरा चांद। झुकी झुकी आंखों के नीचे नमनाकी का नाम न था, नमनाकी माने मॉइस्चर। झुकी झुकी पलकों के नीचे नमनाकी का नाम न था, ये कांटा जो हमें चुभा है काश तुझे भी चुभता चांद। रोशनियों की पीली किरचे पूरब पश्चिम फैल गई, तूने किस शय के धोखे में पत्थर पर दे पटका चांद। हमने तो देखा दोनों ही बेदर्द कठोर, धरती वाला अंबर वाला पहला चांद और दूजा चांद। चांद किसी का हो नहीं सकता, चांद किसी का होता है। चांद की खातिर जिद नहीं करते ए मेरे अच्छे इंशा चांद। तो ये इब्ने इंशा फॉर यू, बहुत ही खूबसूरत पोएम। हो गए 15 मिनट, वन मोर ढूंढना पड़ेगी, पर इंशा जी की सुना रहा हूं। वो बच्चा किसका बच्चा? Oh, lovely. I love that. अभी इतना कुछ कुछ हो रहा है, हमें दुनिया में यहां वहां से खबरें आ रही है, पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, और ये एक बच्चा किसका बच्चा है करके इब्ने इंशा की महान महान कविता है, इसको मैं कहूंगा। ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा काला काला सा, ये काला सा मटियाला सा, ये बच्चा भूखा भूखा सा, ये बच्चा सूखा सूखा सा, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है। ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है, जो रेत पे तन्हा बैठा है, ना इसके पेट में रोटी है, ना इसके तन पर कपड़ा है, ना इसके सर पर टोपी है, ना इसके पैर में जूता है, ना इसके पास खिलौनों में कोई भालू है, कोई घोड़ा है, ना इसका जी बहलाने को कोई लोरी है, कोई झूला है। ना इसका दिल बहलाने को कोई लोरी है, कोई झूला है, ना इसकी जेब में धेला है, ना इसके हाथ में पैसा है, ना इसके अम्मी अब्बू है, ना इसके आपा खाला है, ये सारे जग में तन्हा है। ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये सहरा कैसा सहरा है, ना इस सहरा में बादल है, ना इस सहरा में बरखा है, ना इस सहरा में बाली है, ना इस सहरा में खोशा है, ना इस सहरा में सब्जा है, ना इस सहरा में साया है। ये सहरा भूख का सहरा है, ये सहरा मौत का सहरा है। ये बच्चा कैसे बैठा है, ये बच्चा कब से बैठा है, ये बच्चा क्या कुछ पूछता है, ये बच्चा क्या कुछ कहता है। ये दुनिया कैसी दुनिया है, ये दुनिया किसकी दुनिया है। इस दुनिया के कुछ टुकड़ों में कुछ फूल खिले, कहीं सब्जा है, कहीं बादल घिर घिर आते हैं, कहीं चश्मा है, कहीं दरिया है, कहीं ऊंचे महल अटरिया है, कहीं महफिल है, कहीं मेला है, कहीं कपड़ों के बाजार सजे। ये रेशम है, ये दीबा है, दीबा भी रेशमी होता है, ये रेशम है, ये दीबा है। कहीं गल्ले के अंबार लगे, सब गेहूं धान मुहैया है, कहीं दौलत के संदूक भरे, हाँ तांबा सोना रूपा है। तुम जो मांगो सो हाजिर है, तुम जो चाहो सो मिलता है। इस भूख के दुख की दुनिया में यह कैसा सुख का सपना है, वो किस धरती के टुकड़े है, ये किस दुनिया का हिस्सा है। बस दो हम जिस आदम के बेटे हैं, ये उस आदम का बेटा है। ये आदम एक ही आदम है, वो गोरा है या काला है, ये धरती एक ही धरती है, ये दुनिया है एक ही दुनिया है। सब एक दाता के बंदे हैं, सब बंदों का एक दाता है। कुछ पूरब पश्चिम फर्क नहीं, इस धरती पर हक सबका है। ये तन्हा बच्चा बेचारा, ये बच्चा जो यहां बैठा है, इस बच्चे की कहीं भूख मिटे क्या मुश्किल है, हो सकता है। इस बच्चे की कहीं भूख मिटे क्या मुश्किल है, हो सकता है। इस बच्चे को कहीं दूध मिले, हाँ दूध यहां बहुतेरा है। क्या इस बच्चे को का कोई तन तो ढके, यहां कपड़ों का कोई तोड़ा है। इंसान, इस बच्चे को कोई गोद में ले, इंसान जो अब तक जिंदा है। फिर देखिए कैसा बच्चा है, ये कितना प्यारा बच्चा है। इस जग में सब कुछ रब का है, और जो रब का है वो सबका है।
इस जग में सब कुछ रब का है, जो रब का है वो सबका है, सब अपने है कोई गैर नहीं, हर चीज में सबका साझा है। जो बढ़ता है जो उगता है वह दाना है या मेवा है, जो कपड़ा है जो कंबल है, जो चांदी है जो सोना है, वह सारा है इस बच्चे का, जो तेरा है जो मेरा है। ये बच्चा किसका बच्चा है? ये बच्चा सबका बच्चा है। इब्ने इंशा, थैंक यू। और अब गाने गाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स की बात। सिर्फ पोइट्री करें ना, क्वेश्चन आंसर्स की क्या जरूरत? पोइट्री के बाद क्वेश्चन आंसर्स की क्या जरूरत? ये तो सवाल ही है। हर इब्ने इंशा का पोएम एक सवाल था। जवाब आपके पास होगा, हमारे पास होगा कि ये बच्चा सबका बच्चा है। दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर कि पोइट्री एक सवाल है। ओके, always. Here you go. This is a poem by Tukaram again. I'm only doing Tukaram today because I love him. I've loved him since school. This is a magnificent poem. I am atom. I am sky. I eat my corpse. I vomit. I spurn Maya. All this business of who knows, who is knowing, who can know, I have no use for it. Tuka says, knowledge is a lamp inside me. I burn now to help others. You can clap. Okay. And this is another one. Man karare prasanna. Mind. We want to do it? We want to do it together? Chal, chal. Man karare prasanna. Well done, Ranchi. Sarva siddhi che karana. Moksha athva bandhana. Sukha samadhan ichha the. Mind make me happy. Do. Come on. Mind make me happy. You're the source of all resources. Mind the bonds. Mind the release. Mind just happiness. Mind the reflection. Loudly. Mind the happiness. Mind the reflection. Mind the worship. Mind the completion. Mind my mother. Mind my guru. Mind slave driver. Mind myself. Mind full speed ahead. Mind dawdler. Mind reader. Mind scholar. Mind auditor. Mind seeker. Tuka says, it's all mind. No other God. Thank you. Yay! Thank you. सबका बच्चा है। कविता का शीर्षक है रसवा घर। रसवा घर उस घर को कहते हैं जहाँ पर धान रखे जाते हैं। धान पक रहा था, जैसे सूरज उसमें थोड़ा थोड़ा समा रहा था। धान सुनहरे हो चुके थे, उसके सुनहरेपन से खेत सुंदर हो गया था। खेत के पास स्त्रियां एकत्र थीं, सुनहरे सौंदर्य की गठरी बांधने के लिए तैयार।
इसे वे अपने रसवा घर में सहेजने के लिए इकट्ठा हुई थी। वे धान काट रही थी। उनका हंसिया जैसे दिन को काटते हुए शाम की ओर बढ़ रहा था। सूरज थक चुका था। धूप में तपे उन स्त्रियों के गाल जैसे वह भी लाल हो रहा था। उसे अब लौटना था। स्त्रियों के समूह ने सूरज को काम से छुट्टी दी। हंसिया अपने कमर में खोसा, धान का गट्ठर सिर पर उठाया, लौटते चिड़ियों के संग अपने घर निकल पड़ी और सूरज पहाड़ के पीछे जाकर सो गया। उसे सबके साथ रसवा घर को सजाने के क्रम में फिर जुटना था। धन्यवाद। मैं अब गाने गाऊंगा। मैं और पोएट्री नहीं पढ़ रहा। You want to carry one more? One more you can do. Huh? Or we can just have a little conversation on it. Because I'll get ready for my. Because I have to sing. आप पढ़िए नहीं। कविता का शीर्षक है खद्दी चांद। खद्दी जिसे हम सरहुल के नाम से जानते हैं, तो उस मौसम का चांद, खद्दी चांद। खद्दी का चांद आसरा देखता है, तिलई फूलों का आसरा देखता। फूलों वाले पहाड़ पर उनके मिलने के स्थान हमेशा से तय हैं। खद्दी के मौसम में चांद पहाड़ों पर होता और तारे धरती पर। वे सखुआ के जंगलों में जुगनुओं की तरह खिलते। खद्दी बीतने तक चांद और तारे तिलई और सखुआ फूलों के साथ रहते, फिर अगली खद्दी मौसम में मिलने का आसरा देकर लौट जाते। थैंक यू। Okay. This is another of my favorite women. She's a woman who's long dead, but I would love to have had a conversation with her. With Muktabai and with Soirabai, out of the women in Ant who flew into the sun, I always think like Muktabai was like T.S. Eliot. She doesn't really care so much about God as she loves poetry. She loves the idea of the language. She loves the idea of the image. She loves working with poetry. And Soirabai is equally fascinating. She was a Mahar, which means she was a Dalit. And, she often calls herself Tsokyachi Mahari. But she often doing it because she rhymes. Mahari rhymes with a lot more things than Soirabai. So I love the fact that, she's writing to God, but she's also doing her own thing. She's doing poetry as well. So the Sant Kavis are for me, like when I did Tukaramna, the word is God, he says, right, at one point. And I thought, gosh, in the Bible, the beginning of St. John's Gospel is, the word was God. The word was with God, and the word was light. And you're thinking, my gosh, they're saying the same thing. So it really doesn't matter sometimes whether you're born a Christian or you're born a Hindu, you're born a Muslim. These saints just talk to all of us. Yeah, and listen to this one. Kiti hai marti, kiti hai radti. Well, kiti hai marti, kiti hai radti, kiti ka hasati apna apna. Kiti ka hasati आप अपना पाहता विचार काय आहे खरे पाहता विचार काय आहे खरे खोट्या लागा ही जुरे प्राणी देखा. So here's the translation. How much death, how much weeping. How much death, how much weeping. Who is that laughing on the sly? We look and we wonder, what is truth and why so many
pine for a lie? What is death and what is grieving? At whom do we aim our thoughtless laughter? Who has been spared? Who is leaving? Our fate is common in the hereafter. Soira says, I find it odd. Not one among them remembers God. Thank you very much. Huh? Jerry Pinto! Thank you. Yeah, so I'll just ask if there are any questions. We can take a couple of questions from you all if there are any. The beauty of the poetry sessions are they're very short and sweet, but they're also short. Is Anyone there with any a question? question? Lovely. Thank you so much. ठीक है. Songs will be coming shortly. Yeah, there's one question, mercifully, yes. आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बिहार में कोई एक दलित महिला जिनका एक स्टैचू है, वो जगह क्या है, उसकी कहानी थोड़ा बता सकते हैं? मतलब हाँ, पिंटो सर से पूछ रहे थे, वो वहाँ पे बता रहे थे. Sorry, tell me again. बिहार में? नहीं, मतलब आप वहाँ पे थोड़ा सा एक बता रहे थे कि कोई उनका एक स्टैचू है जिनको लोग ओके. The English अखबार English में goddess. मैंने पढ़ा था. I read in the newspaper that the Dalits of Bihar have set up a temple to what they call Angrezi Devi. क्योंकि इस देवी के पास ना कास्ट है, उसको कास्ट की याद ही नहीं है. अंग्रेजी में कास्ट कहाँ है? जो कास्ट शब्द है अंग्रेजी में वो भी पोर्चुगीज लोगों ने तय किया, काश्ता, जिसका अर्थ है कलर. ओके, सो फॉर देम अंग्रेजी इज अ वे आउट ऑफ स्लेवरी. It is a way out of poverty. And I think partly ironically and partly out of a real feeling, अंग्रेजी को एक देवी बनाया गया है. Okay? Now whether पूछते हैं और क्या प्रसाद देती है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन that image of the idea कि अंग्रेजी एक देवी है मेरे मन में बस गया. And out of that idea came that image कि एक प्लायर्स है हाथ में, मातृभाषा खींचेगी लेकिन दूसरे हाथ में जॉब ऑफर मिलेगा एंड ग्रीन कार्ड मिलेगा. वो देवी का कमाल है. देवी तो कुछ लेती है और कुछ देती भी है. या अरे आई कैन सी माय बैक. कैमरामैन को भी काम करने दो. Any other questions? Well, then I'll just conclude with one question to both of you. As somebody who organizes literature festivals, do you think poetry is the second child of literature festivals? आप बताइए ना. क्या पोएट्री को और थोड़ा प्यार मिलना चाहिए साहित्य उत्सवों से? और प्यार हम कम सेशंस करते हैं पोएट्री और कविता के बारे में, तो ये आपको क्या ऐसे लगता है या यही पर्याप्त है? समय से प्यार का क्या, प्यार में गहराई क्या होनी बात चाहिए, चाहे वो 15 मिनट का ही क्यों ना हो. बस. सुभान अल्लाह. Thank you. That was a lovely answer. I think आप लोग भी तो कुछ प्यार करिए ना, और वॉलेट से करिए थोड़ा प्यार. हाँ, पार्वती जी की सब किताबें कल ही बिक गई थी, जो सब सेल आउट हो गया था हम लोग का इधर बुक स्टोर से. और बाकी स्वानंद जी के किताब हैं उधर, अगर आपको लेना है तो दे आर अवेलेबल. तो थैंक यू पार्वती जी, थैंक यू जेरी. Jerry has made very good use of this whole wonderful amphitheater, and a special thank you for that. You have shown us the possibilities of this venue.